One of the most difficult things while describing or understanding a poem are poetic devices. These poetic devices are deliberate use of words, phrases, sounds, and even shapes to convey meaning. कई बार एक पोएट अपनी कविता में, अपने पोएम में कुछ खास शब्दों का प्रयोग कुछ विशेष तरीके से करता है एंड दीज आर कॉल्ड पोएटिक डिवाइसेस. ये इतने ब्रॉड होते हैं दैट इट कैन बेसिकली इनकम्पास एनी फॉर्म ऑफ रिटन एक्सप्रेशन, बट पोएटिक डिवाइसेस आर जनरली यूज्ड टू हाईलाइट the literal meaning of the words by considering sound, form, and function. So, basically, their use is to elaborate the meaning or to make a poem more ornamental. Here, in the next couple of minutes, we will be talking about different poetic devices and how they occur in a poem. So, first it says allegory. An allegory is a short poem or other written work that can be interpreted to have a secondary meaning. Allegory किसे कहते हैं? तो स्टोरी या पोएम जिसका कि कुछ अलग मतलब हो, that's called allegory. Like Aesop fables are examples of allegories as they are ostensibly about one thing, like the ant and the grasshopper. मतलब सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो allegory वैसे टाइप के पोएम हैं जो कि किसी स्टोरी या किसी अदर मीनिंग को दिखाते हों विद द यूज़ ऑफ वेरियस सिम्बल्स और पोएम. सेकेंड इज एलिट्रेशन. अब एलिट्रेशन क्या होता है? इट्स वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड और फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस इवन इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस. एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ अ साउंड और लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ मल्टीपल वर्ड्स इन अ सीरीज. टू से आसान शब्दों में कहें तो एक लाइन में कई शब्द जब एक ही साउंड देते हों, या तो उनका इनिशियल लेटर सेम हो या फिर उनका साउंड सेम हो, देन इट्स कॉल्ड एलिट्रेशन. लाइक इफ यू सी वंस W sound is here, upon, were, a, midnight dreary, while I pondered weak and weary. So now weak and weary, the sound the same and they start with initial letter which is same. So this is called alliteration. ऊपर जो लाइन्स हैं वहाँ पे WH साउंड रिपीट हो रहा है, वीक में, weary में, once और upon. In these four words we see that the sound is almost the same. So such repetition of sound at the beginning of multiple words in a series is called alliteration. Next poetic device is apostrophe. Apostrophe का यूज़ हम लोग पोजिशन शो करने के लिए भी करते हैं, बट एज ए पोएटिक डिवाइस जब राइटर किसी और की कही बात को रिपीट कर रहा हो या किसी ऐसी चीज़ के बारे में बता रहा हो विच इज़ नॉट एट प्रेजेंट देयर, देन वी यूज़ एपोस्ट्रॉफ. लाइक ओ स्ट्रेंजर ऑफ द फ्यूचर, ओ इनकन्विंसिबल बीइंग, वॉट एवर द शेप ऑफ योर हाउस, नो मैटर हाउ स्ट्रेंज एंड कलरलेस द क्लोथ्स यू मे वियर. नाउ यू सी हियर द पोएट हैज़ यूज्ड एपोस्ट्रॉफ. यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ का यूज़ किसके लिए आया? तो इट हैज़ कम फॉर द वन हु इज़ नॉट प्रेजेंट देयर. मीन्स ही इज़ एक्सक्लेमिंग और ही इज़ जस्ट एड्रेसिंग समवन हु इज़ नॉट प्रेजेंट एट द टाइम. नेक्स्ट वी गेट टू सी एजोनेंस. अब ये एजोनेंस क्या है? तो जब वॉवल साउंड की रिपीटिशन बार बार हो रही हो, याद रखिएगा वॉवल साउंड्स की रिपीटिशन, इट्स कॉल्ड एजोनेंस. Like when you read the lines, hear the loud alarm bells, brazen bells, what tell of terror, now their turbulency tells, in the startled ear of night, houses scream out their affright. Too much horrified to speak, they can only shriek, shriek, out of tune. When जब पोएम यहाँ पे बेल्स के बारे में कह रहा है तो वो एक शार्प हाई पिच वोवल का यूज़ कर रहा है हर बार ई और आई का. Like when you see horrified, shriek, shriek, speak, then further you can see that these sounds, these vowel sounds are all time repeated. Scream, ear, dear, so these are same sound. तो ऐसे sounds को हम कहते हैं assonance. Next word is ब्लैंक वर्स. अब ब्लैंक वर्स क्या होती है? इन हिंदी इट्स कॉल्ड मुक्त छंद, जहाँ पे कोई छंद ना हो या कोई लयबद्धता ना हो किसी भी एक लाइन के, एक स्टैंजा के लाइंस में.
It's called blank verse. Poetry written without rhyme, especially if that poetry is written in iambic pentameter. Then we get to see about consonants. तो जहाँ पे consonant letters बार बार repeat हो रहे हो in a series, it is called consonants. Like tiger, tiger burning bright. Here we see T, T. Sound T is coming all the time, and T is a consonant sound. So such alliterations basically they are called consonants. मतलब अगर consonant sound बार बार repeat हो रहे हो, they are called consonants. Next we see enjambment. Enjambment is the continuation of a sentence beyond a line break. कई बार poet अपनी लाइन को अपने स्टैंजा को एक लाइन में कंप्लीट नहीं करते, but they continue the line in a process so that you will have to read the entire stanza or sometimes entire poem to get its meaning. जैसे यहाँ पे एक लाइन है, does it dry up like a raisin in the sun or fester like a sore and then does it stink like rotten meat or crust and sugar over like a syrupy sweet. अब इस स्टैंजा में एक खासियत आप देख रहे हो, does it dry up like a raisin. This line is not complete in itself unless you read till the next stop. जब तक आप इन दोनों लाइंस को एक साथ नहीं पढ़ोगे, इसकी मीनिंग आपको क्लियर नहीं मिलने वाली. सो दैट अ शॉर्ट ऑफ लाइंस इज कॉल्ड इंजैम्पमेंट, जहाँ पर आपको एक स्टॉप 2 या 3 लाइनों के बाद मिले. लाइक यू सी, डज इट ड्राई अप लाइक अ रेजिन इन द सन. सो टू गेट द एंटायर मीनिंग यू डोंट हैव टू जस्ट डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट लाइन, रादर यू हैव टू कंटिन्यू टिल द स्टॉप, दैट इज क्वेश्चन मार्क तक आपको पढ़ना पड़ेगा. मूविंग फोर्थ, इट्स आयरनी. आयरनी का अलग अलग मतलब होता है, लेकिन आयरनी का जो मोस्ट कॉमन मतलब है वो है कि आप कुछ ऐसा शो कर रहे हो जो कि इसके ठीक अपोजिट हो. लाइक ये आई लव डॉग्स, शी सेड ड्राइली. अब कोई कहे ये आई लव डॉग्स, इट्स डिफरेंट इन मीनिंग देन ये आई लव डॉग्स. नाउ बोथ ऑफ दीज वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग. तो आयरनी मतलब क्या कि जब हम कहना तो कुछ और चाह रहे हो बट वी मीन समथिंग एल्स बाय आवर टोन, दैट इज आयरनी. नेक्स्ट इज मेटाफर. जब एक पोएट अपने लाइंस में एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर कर रहा हो, इट्स कॉल्ड मेटाफर. लाइक एन इमोशनल रोलर कोस्टर. अब एक रोलर कोस्टर से कभी इमोशनल हो नहीं सकता, बट ही इज कंपेयरिंग 2 थिंग्स, सो दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड मेटाफर. अगला है ओड. ओड क्या है? ओड इज अ शॉर्ट लिरिकल पोएम ऑफन इन प्रेज ऑफ समथिंग. लाइक वी से ना चालीसा किसी के प्रेज में गाया जाता है, सो दैट ओड इन इंग्लिश इज कॉल्ड इट्स अ शॉर्ट लिरिकल पोएम ऑफन इन प्रेज ऑफ समथिंग. किसी के प्रेज में लिखा गया सॉन्ग पोएम इज कॉल्ड ओड. लाइक thou still unravished bride of quietness, thou first child of silence slow time, sylvan historian which canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme. What leaf fringed? This is an ode on a gracious urn. John Keats was one of the most prophetic or one of the most prolific writers who took the writing of ode to a next level. अगला है पन. अब ये पन क्या है? तो पन शब्दों के साथ खिलवाड़ है जिससे कि एक ही शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल जाए या एक ही शब्द के द्वारा हम अलग अलग तरीके से अपनी बात को कहने की कोशिश करें. दैट्स कॉल्ड अ पन. लाइक इट्स अ लॉन्ग टेल सर्टेनली सेड एलिस लुकिंग डाउन विद वंडर एट द माउस टेल, बट व्हाई डू यू कॉल इट सैड? एंड शी केप्ट ऑन पजलिंग अबाउट इट व्हाइल द माउस वाज स्पीकिंग. माइन इज अ लॉन्ग एंड सैड टेल सेड द माउस टर्निंग टू एलिस एंड साइंग. अभी जब कोई माउस ऐसा कह रहा होगा कि माइन इज अ लॉन्ग एंड अ सैड टेल, मतलब वो कहना तो चाह रहा है लेकिन शब्दों के साथ खेल रहा है ताकि जो लिसनर है उसका ध्यान और ज़्यादा वो खींच सके. सो सच अ प्ले ऑन वर्ड्स यूजिंग मल्टीपल मीनिंग्स और सिमिलर साउंड्स टू मेक अ जोक इज कॉल्ड अ पन. अगला है रेपिटिशन. रेपिटिशन क्या होता है? तो रेपिटिशन इज फेयरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. अपने आप में वर्ड के नाम से ही क्लियर है दैट इट शोज रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस. जब कोई वर्ड या फ्रेज बार बार रिपीट हो रहा हो, इट्स कॉल्ड रेपिटिशन. लाइक व्हेन यू सी डू नॉट गो जेंटल इनटू दैट गुड नाइट, ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेव एट क्लोज ऑफ डे, रेज रेज अगेंस्ट द डाइंग ऑफ द लाइट. अभी यहाँ देख सकते हो आप रेज रेज 2 वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं.
एक ही वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, दैट्स रेपिटेशन। लेकिन अगर आप लाइन नंबर 1 देखोगे तो गो, जेंटल, गुड, इट्स जी, जी एंड अगेन अ जी इन द फर्स्ट स्टैंजा। गो, जेंटल, गुड, 3 बार जी का इस्तेमाल हुआ। सो दैट्स कॉन्सोनेंस और एलिट्रेशन, या फिर हम इसे या तो इसे हम कॉन्सोनेंस कहेंगे या फिर एलिट्रेशन कहेंगे। और लाइन 3 में जो हम देख रहे हैं रेज, रेज, नाउ दैट इज व्हाट, दैट इज रेपिटेशन। यहाँ तक कि लाइन फर्स्ट और लाइन सिक्स्थ, इफ यू सी दिस लाइन, लाइन 1 एंड लाइन 6, इट इज व्हाट, इट इज एलिट्रेशन, इट्स रेपिटेशन। हमारा अगला वर्ड है सिमिले। सिमिले इज यूज टू शो सिमिलैरिटी बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। जब हम दो चीज़ों के बीच क्वालिटी की बात करें, एक जैसी क्वालिटी होने की बात करें, देन वी यूज़ सिमिले। इसमें एज और लाइक जैसे वर्ड्स हमेशा ही होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि सिमिले और मेटाफर में क्या अंतर है, तो दोनों शो तो करते हैं कंपैरिजन ही, दोनों शो करते हैं सिमिलैरिटी, लाइकलीनेस ही, लेकिन जहाँ सिमिले में एज और लाइक का होना मस्ट है, वही मेटाफर में एज और लाइक मिसिंग होते हैं। लाइक यू वर एज ब्रेव एज अ लायन, दे फॉट like cats and dogs. He is as funny as a barrel of monkeys. This house is as clean as a whistle. He is as strong as an ox. Your explanation is as clear as mud. नेक्स्ट है हमारा सोनेट। सोनेट एक 14 लाइन का पोएम होता है जिसमें कि एक स्ट्रिक्ट राइम स्कीम होती है जिसे इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि सोनेट एक 14 लाइन की पोएम है। लाइक यू कैन सी, how do I love thee? Let me count the ways. I love thee to the depth and breadth and height. My soul can reach when feeling out of sight. For the ends of being an ideal grace. This is a sonnet written by Elizabeth Barrett Browning. How do I love thee? Sonnets एक standardized poetry format थे शेक्सपियर के टाइम के, और वो सोनेट राइटिंग के मास्टर थे। देन लुकिंग एट द नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस इज रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है? तो जब एक वर्स, एक लाइन, एक सेट ऑफ ग्रुप किसी स्टैंजा के अंत में रिपीट हो रहा हो, या दो स्टैंजाज के, दो अलग अलग स्टैंजाज के बिगिनिंग में जो रिपीट हो रहे हों, दैट्स कॉल्ड रिफ्रेन। जैसे यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, वंस आई हर्ड एन एंजल सिंगिंग, और फिर जो लास्ट लाइन है इसी स्टैंजा का, इट्स द सेम, वंस आई हर्ड एन एंजल सिंगिंग। तो ये एक तरह से रेपिटेशन भी है, लेकिन फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन रिपीट हो रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड रिफ्रेन। अगेन यू सी, ओ cauldron डोंट डिस्ट्रेस, एंड अगेन द लास्ट लाइन इज ओ cauldron डोंट डिस्ट्रेस। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन एग्जैक्टली सेम है, पूरा का पूरा फ्रेज, पूरा का पूरा वर्ड्स रिपीट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड रिफ्रेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओके दैट वाज इट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ अनदर वीडियो। टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय।